Hello student, your SST teacher Anita ma'am welcomes you in SST Solution Point. Today I will teach you a new chapter of class 10th. First chapter of Geography, Resource and Development. In this chapter I will teach you the following points. First, the introduction of resources, and then we will cover the classification of resources, development of resources, resource plannings, land resources in India, and in last topic we will cover the soil as a resources. So student, first of all I will discuss with you about the resource. What is resource? The introduction of part of resource. The things which are helpful to fulfill the basic needs of the people is called resource. जो चीज़ें हमारी बेसिक नीड को पूरा करती हैं हम उनको रिसोर्स बोलते हैं। जो नेचर में जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है और जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे हैं, वो हमारे लिए रिसोर्स हैं। जैसे ये सारे प्लांट्स हैं, वाटर है, फायर है, ये सब रिसोर्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। इन्हीं रिसोर्सेज को हम आगे टेक्नोलॉजी लगा के, माइंड लगा के इनमें हम इनको डेवलप करते हैं। Natural resources are the free gift by the nature. Overall, we can say that everything available in our environment which can be used to satisfy our need is called the resource. There are two types of resources mainly. First is natural resource and human resource. Natural resource further type in two types, renewable and non-renewable resources. Renewable resources have two types, continuous and biological, and non-renewable, recyclable and non-recyclable. Biological resources are two types, natural vegetation related with natural vegetation and related with the wildlife. These are natural resources. And if we talk about the human resources, the structure and institution, जैसे आपका स्कूल है, कॉलेजेस हैं, ये सब ह्यूमन रिसोर्सेज हैं. क्वांटिटी एंड क्वालिटी, लाइक क्वांटिटी, ये वाटर की क्वालिटी पे या क्वांटिटी पे बात हो गई, ये सब हमने यूज़ किया है जिन रिसोर्सेज पे ह्यूमन ने अपना माइंड लगा के, टेक्नोलॉजी लगा के, अपनी नॉलेज लगा के उनको अपने अकॉर्डिंग यूज़ करने लायक बनाया, वो हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं. सो वन बाय वन वी डिस्कस ऑल दीज. First, natural resources. Resources which are the gift of nature is called natural resources. It is of two types, biotic and abiotic. Next, human resources, human made resources which are created by the man using his skill, technology, knowledge by utilizing natural resources. लाइक अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ह्यूमन रिसोर्सेज का, ये रोड, बिल्डिंग्स, ब्रिज, ये सब ह्यूमन रिसोर्सेज हैं. और जो आप नेचर से डायरेक्ट गेट कर रहे हो वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनको हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, वो हमारे सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं. लेकिन जो मॉडिफाई हो गए हैं, लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं वुड का. हमने प्लांट से वुड ली और उनसे हमने फर्नीचर प्रिपेयर कर दिया. जो ये फर्नीचर है ये हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है, प्लांट्स हमारे जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं. नेक्स्ट, type of resources. These are the classification of resources. Resources are three types, natural, human and human made. Natural resources अभी हमने डिस्कस किया था, आगे हम इनके डिटेल में डिस्कस करेंगे. ह्यूमन खुद में एक रिसोर्स है. Like for example me, I am a teacher, I am teaching you. I have a share in our economy. मेरा अपनी इकोनॉमी में शेयर है, अपनी कंट्री की इकोनॉमी में शेयर है. जिन ह्यूमंस का अपनी कंट्री की इकोनॉमी में शेयर होता है वो खुद में एक रिसोर्स हो जाते हैं. आगे जाके आप स्टूडेंट्स भी रिसोर्स बनोगे.
जैसे जैसे आप अर्न करना स्टार्ट करोगे आपका अपनी कंट्री में पूरा का पूरा शेयर होगा, और जो आप करोगे अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, वो एक ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। एंड देन ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जिन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ इंसानों ने अपने अकॉर्डिंग उनको बनाया है, ढाला है अपने अकॉर्डिंग, वो हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। तो वन बाय वन हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे आगे। फर्स्ट, can be categorized on the basis of origin. First, biotic resources and abiotic resources. Before these, we have to know about the natural resources. The natural resources are material which appear naturally in different environment condition, which I already told you. And these are the two types of resources, natural resources, biotic and abiotic. Biotic resources are those resources which directly obtained from our biosphere, यानी जिनको हम डायरेक्टली अपने बायोस्फीयर से लेते हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज हैं, विच हैव लाइफ ऑल्सो, जिनमें लाइफ होती है। लाइक जैसे हमारे दिए हुए हैं प्लांट्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये सब बायोटिक रिसोर्सेज हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज कंप्राइजेज नॉन लिविंग थिंग्स, मीन्स these are obtained from the non-living things and they don't have life also. For example, copper, gold, lead, these are the abiotic resources. As you see in these pictures, in the biotic resources, vegetables are shown, and this vegetable oil also given there. And in abiotic resources, you see these materials are called abiotic resources, like salt, and these jewelries are related with abiotic resources. So next classification is on the basis of exhaustibility. On the basis of exhaustibility, there are two types of resources: renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources are those resources which can be used again and again, and non-renewable resources which we cannot use again and again. We can use only one time. For example, fossil fuels like coal, oil, gas, these resources come in non-renewable resources. And renewable resources examples are like solar energy, water, solar light, soil. These are the renewable resources. Means student, renewable resources वो resources हैं जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनको हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने इनके एग्जांपल डिस्कस किए, कोयल है, गैस है, ऑयल है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज, renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources, these are those resources which can be renewed in a short time, जिनको हम कम समय में ही जो रिन्यूएबल हो सकते हैं। जैसे हमने सोलर एनर्जी का एग्जांपल लिया, वो उसी हमें एबिडेंट में है ये हमारे पास सोलर एनर्जी। These are if we talk about the non-renewable resources, these are those resources which cannot be renewed in a short time, जिनको हम इतने कम समय में दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते। जैसे हम पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं, पेट्रोल हम गाड़ी में डलवाते हैं और वो ख़त्म हो जाता है। पेट्रोल को बनने में 2000 ईयर्स लग जाते हैं, इसलिए पेट्रोल हमारा नॉन रिन्यूएबल में काउंट होगा। और इतना लंबा समय जिसके बनने में लग जाता है तो हम उसको शॉर्ट टाइम में डेवलप नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट, दीज डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनसे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है, ये पोल्यूशन नहीं एग्जॉस्ट करते। लाइक जैसे हम सोलर लाइट यूज़ करते हैं, लाइक सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा इनसे कोई पोल्यूशन नहीं होता। लेकिन अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करें, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें, ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट में।
थर्ड, दीज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये नेचर से मिली हुए फ्री गिफ्ट हैं हमारे लिए। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, दीज आर नॉट द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये फ्री गिफ्ट नहीं है। लाइक सोलर एनर्जी कोई भी यूज़ कर सकता है, इस पर किसी गवर्नमेंट का राइट नहीं है, किसी का भी राइट नहीं है, तो हमारे लिए फ्री है ये। इसी तरह अगर हम पेट्रोल के एग्जाम्पल लें तो पेट्रोल हमें खरीदना पड़ता है, यही इसका मेन एग्जाम्पल है। फोर्थ, एयर वाटर एंड सोलर एनर्जी आर सम ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लास्ट पॉइंट में हमने इनके एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं, जैसे एयर वाटर सोलर एनर्जी ये हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। मिनरल ऑयल एंड द कोल आर सम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो स्टूडेंट, आप अच्छे से समझ गए होंगे रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। नेक्स्ट टाइप इज रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। मीन्स इन जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे किसका राइट है, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है इसमें इंडिविजुअल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिन पे किसी इंडिविजुअल किसी एक ह्यूमन बीइंग का राइट हो, या किसी की प्राइवेट हो, इंडिविजुअल हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलते हैं। लाइक जैसे आपका घर है, वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, आपकी कार है, वो आपका एक इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं। यानी जिस पे हम लोगों का राइट होता है, हम अपना राइट होता है, ये नहीं कह सकते हम सबका राइट होता है, हाँ अपना राइट होता है। जैसे आपका प्लॉट है, आपकी गाड़ी है, ठीक है, आपकी बुक्स हैं, ये सब इंडिविजुअल रिसोर्सेज का पार्ट है। नेक्स्ट, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल फॉर ऑल मेंबर्स, यानी फॉर द कम्युनिटी पर्पस जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज होते हैं। जैसे आपके गांव में आपका जो पॉन्ड होता है, पब्लिक पार्क होते हैं, प्ले ग्राउंड्स होते हैं, ये सारे कम्युनिटी बेस्ड होते हैं। इन पे एक का इंडिविजुअल राइट नहीं होता, सारी कम्युनिटी का राइट होता है। Next, national resources. National resources are those resources which are under the control of a state or a union government are known as the national resources. National resources वो resources होते हैं जो किसी एक नेशन की बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री का पार्ट होते हैं, उनको हम नेशनल रिसोर्सेज बोल सकते हैं। जैसे हमारे बायोस्फीयर, नेशनल पार्क, ये सारे हमारे नेशनल रिसोर्सेज हैं। Next, international resources. These resources are owned and regulated by the international institution, जिनको वर्ल्ड लेवल पे टैकल किया जाता है, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे हमारे ओशियंस हो गए, ये हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज का पार्ट है, ठीक है। हमारा इकोनॉमिक जोन है, ये हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज का पार्ट है। यानी जिसको हम वर्ल्ड लेवल पे यूज़ करते हैं वो हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो गए। लाइक ओशियंस है, जैसे इंडियन ओशियन है, वो इंडियन की टेरिटरी में आता है, ये हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स हो गया। इंटरनेशनल जैसे हम ट्रेडिंग करते हैं, वो सब ये सारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंडर आ जाएंगे। तो सो स्टूडेंट, दीज आर द टाइप्स ऑफ ओनरशिप बेस। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट एंड डेवलपमेंट। For the state, for this we have to know about these further types like potential resources, developed resources, stock and reserves. So student, we will all study one by one. First is potential resources, means ये जो type है on the basis of status and development, यानी उनका वो कैसे state of development, उनका कैसे developed हुए हैं वो, ठीक है, वो आगे कहाँ तक चलेंगे, उनको प्रेजेंटली हम यूज़ कर रहे हैं या फिर वो ख़त्म होने वाले हैं, ये आगे उसके टाइप हैं। फर्स्ट हमारा है पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन but have not been utilized by due to the lack of capital, technology and other reasons. Like potential का मतलब क्या होता है? संभावना, यानी हमारे पास रिसोर्सेज हैं काफ़ी, उनकी संभावना है कि आगे आने वाले टाइम में उनका हम
हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि उनको हम एकदम से चेंज कर दें जो हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं उनके साथ। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, आगे आने वाले टाइम में उन रिसोर्सेज का हम प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान और गुजरात, वेस्टर्न राजस्थान और गुजरात में विंड और सोलर एनर्जी के जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, और आगे इन फ्यूचर में हम इनकी प्रॉपर टेक्नोलॉजी लगा के हम इनका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो विच हैव बीन सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड। मीन्स जिन रिसोर्सेज के बारे में हमें अच्छे से पता है, जिनको हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं, और जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी का हमें आइडिया है कि भाई ये इतने साल तक और चलेंगे, इतनी इनकी क्वांटिटी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, इंडिया इज़ ए क्यूमुलेटिव टोटल 2,47,847 माइल टोन्स ऑफ कोल रिसोर्सेज। यानी आज हमें ये पता है कि 2 लाख के अराउंड हमारे जो कोल भंडार हैं वो सुरक्षित हैं, इतने और बचे हुए हैं, यानी हमें उनकी क्वांटिटी का अच्छे से आइडिया है, वो डेवलप्ड रिसोर्सेज होते हैं। Next, stock. These are the material in the environment which have been potential to satisfy the human needs but could not be used as human beings do not have the appropriate technology to convert them into the usable form. यानी वो मटेरियल जो आज हमारे प्रेजेंटली हमारी नीड्स को पूरा कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो हम जिसको यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन हमें उसके दूसरे यूजेस का नहीं पता, जिनको हम अप्लाई करके टेक्नोलॉजी लगा के अदर यूज़ में भी उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल करें, वाटर जो है H2 और O का मिक्सचर है वाटर जो है, एंड इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, बट हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको एक टू यूज़ दैम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी हम इसको यूज़ कर सकें वाटर को। तो ये हमारा हो गया स्टॉक। वाटर का स्टॉक हमारे पास बहुत है, लेकिन हमारे पास आज वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसका अदर यूज़ कर सकें, एनर्जी रिसोर्सेज में यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है रिजर्व। रिजर्व्स क्या हैं? दीज आर द सबसेट ऑफ स्टॉक्स विच कैन बी put into use with the existing technology but their use have been postponed keeping in the mind needs of future generation। यानी रिज़र्व का हम कैसे लेंगे कि हमारे पास काफ़ी स्टॉक है रिज़र्व्स का, हम यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ हम जो अब प्रेजेंटली हमने उस पर रोक लगा रखी है कि भाई इसको अभी यूज़ नहीं करना, हमें इसको फ्यूचर की जनरेशन के लिए बचा के रखना है। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? फॉरेस्ट। अभी हम फॉरेस्ट पे बहुत सारे लॉज लगा दिए गए हैं, ज़्यादा एरिया को एक्सटेंड किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? फॉरेस्ट पे इतना फोकस क्यों है? क्योंकि हम ये फॉरेस्ट को हम फ्यूचर की नीड के लिए प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उनको भी तो एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, उनकी भी तो बेसिक नीड्स होंगी, उन सब के लिए हमने उनको रिजर्व रखा हुआ है। दूसरा एग्जांपल हम वाटर का ले सकते हैं। वाटर हैज़ पोटेंशियल एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हम वाटर को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ कर सकते हैं, जिसका अभी इतना यूज़ नहीं, लेकिन हमने फ्यूचर के लिए वो चीज़ भी बचा रखी है। तो ये सारे जो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर आगे कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। यूबिक्विटियस, ये दो टाइप के आते हैं, लोकलाइज एंड यूबिक्विटियस। यूबिक्विटियस रिसोर्सेज वो होते हैं, दीज रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ लाइक एयर, सोइल, लैंड, जो मतलब हर जगह आपको मिलेंगे, जिनका कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है कि भाई इसी रीजन में ये मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो हर जगह होते हैं वो यूबिक्विटियस होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। लोकलाइज रिसोर्सेज, इनके नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा, यानी
जो पर्टिकुलर किसी लोकल एरिया में ही होते हैं। These are resources which are found only in certain places are known as the localized resources, जैसे कॉपर, आयरन, और ये सारे localized हैं, यानी ये कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही सीमित हैं। तो स्टूडेंट इसमें ये जो यूबिक्विटीज है ये पहले एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन में काफ़ी आया हुआ है, इसको आप अच्छे से कर लेना। So student, in this video I taught you about the introduction of resources and the classification of resources. In the next video I will teach you about the development of resources and resource planning. So don't forget to watch the second video. Thanks for the day, and hope you will understand the chapter well. If you have any doubt, you can ask me by my email or you can ask me personally as on WhatsApp. Thank you very much, students.